My dear children, let us do our English grammar in this video. Actually, we were doing verbs. हम verb कर रहे थे, बराबर? In the last video, I have taught you about the hidden verbs. Now, you may think, what happened suddenly I changed to adjective? Because the Fatima School students have got their timetable of unit test, and some children have got the portion of grammar degree of comparison. So I thought I should take that portion first. So here I am starting that portion, degree of comparison. कंपैरिजन जो डिग्री है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन में हम यूज़ करते हैं एडजेटिव. एंड नाउ यू नो व्हाट इज एडजेटिव. इट इज़ अ पार्ट्स ऑफ स्पीच. ये एक पार्ट ऑफ स्पीच है और ये एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है. एडजेटिव इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड. एडजेटिव एक डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है. दैट मीन्स इट डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन, समटाइम्स नाउन फ्रेजेस ऑल्सो. ये डिस्क्राइब करता है, मीन्स टेल्स मोर अबाउट अ नाउन और अ प्रोनाउन. सिंबल डिफिनेशन में एडजेटिव का सिंबल डिफिनेशन ये होता है, एडजेटिव इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड विच डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन, यानी टेल्स मोर अबाउट अ नाउन और अ प्रोनाउन. फॉर एग्जाम्पल, अ गर्ल इज वॉकिंग टूवर्ड्स मी. वहाँ पर व्हाट इज अ नाउन? नाउन इज गर्ल, but there is no description word, describing word is not given. A girl. But if instead of telling a girl, if I use an adjective, a pretty girl is walking towards me, that word pretty is an adjective. So these adjective words can be used in while comparing something या some persons. कोई चीज़ को या कोई क्वालिटी को कंपेयर करते करते टाइम वी यूज दिस एडजेक्टिव. There are three different degrees of comparison. Suppose the previous sentence, a pretty girl was, या a pretty girl is walking towards me. तो वहाँ पर pretty girl, simply I said pretty girl, a simple quality was described. I did not compare that girl with anyone else. उस गर्ल को मैं किसी और के साथ कंपेयर नहीं किया. It was a simple explanation, simple description. So whenever we do a simple description, we use the first degree, that is positive degree. And whenever we compare the qualities of two persons or two things, the comparison is done between two topics or two things or two persons, then we use comparative degree. And whenever we compare one person or one thing with a number of things or number of people, एक व्यक्ति को या एक चीज़ को, एक सब्जेक्ट को बहुत सारे के साथ अगर कंपेयर करते हैं, देन वी यूज अ सुपरलेटिव डिग्री. आई एम टेलिंग यू सम एग्जांपल्स. वन एग्जांपल, लेट्स सी. प्रिया इज अ प्रिटी गर्ल. प्रिया इज अ प्रिटी गर्ल. देयर आई सिंपली डिस्क्राइब्ड प्रिया. वहाँ पर मैंने प्रिया को सिर्फ सिंपली डिस्क्राइब किया है. शी इज नॉट कंपेयर्ड विथ एनीवन एल्स. वो किसी और के साथ कंपेयर उसको नहीं किया. प्रिया इज अ प्रिटी गर्ल. नाउ आई एम कंपेयरिंग प्रिया विथ पायल. प्रिया इज प्रिटियर दैन पायल. प्रिया इज प्रिटियर दैन पायल. देयर आई यूज्ड प्रिटियर इंस्टेड ऑफ प्रिटी. प्रिटी के बदले मैंने प्रिटियर यूज किया. प्रिया इज प्रिटियर दैन पायल. That means the comparison is done between two people. One is Priya, the other is Payal. Priya और पायल के दोनों के बीच में comparison हुआ. So as I said before, जब दो व्यक्ति, दो चीज़ के बारे में, दो इंसान या किसी दो टॉपिक्स के बारे में comparison होता है, then we use the comparative degree. And now that Priya is again compared with someone else,
Like Priya is the prettiest girl in the class. Here I have done the comparison of Priya with the whole class. पूरे क्लास के साथ मैंने प्रिया का कंपैरिजन किया. In the class, so many children are sitting. There are so many children in the class. And I am telling that Priya is the prettiest girl in the class. Class के prettiest, सबसे सुंदर. That means she is compared with all the other children. तो एक व्यक्ति का कंपैरिजन बहुत सारों के बीच से हुआ, बहुत सारे के साथ हुआ. Then we use superlative degree. Okay, before starting this degree of comparison, or before going to the sentences regarding degree of comparison, before we start studying the rules of degree of comparison or change the degree, we should know 3 degrees, the words which use in 3 degrees. तीनों डिग्री में यूज करने वाले वर्ड्स के बारे में हमें सीखना होगा, समझना होगा. दैट मीन्स adjectives in 3 different degrees. So here I have written degree of comparison. There are 3 degrees of comparisons. 3 degrees of comparisons होते हैं. That is, 1 positive degree, 2nd comparative degree, 3rd is superlative degree. Positive degree, comparative degree, and superlative degree. I told you positive degree when we simply describe someone. Comparative degree is used when two things are compared. And superlative degree is used when a thing is, when a person or whatever is compared with the many. Okay, now list of adjectives in all the 3 degrees. First one is positive, second comparative, third is superlative. Normally मीनिंग बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. लेट अस सी स्मार्ट. स्मार्ट का मीनिंग आप जानते हो. स्मार्ट इज एन एडजेक्टिव. ओके. रवि इज अ स्मार्ट बॉय, मतलब रवि एक स्मार्ट बॉय है. स्मार्टर, it's a comparative degree. Smartest is the positive superlative degree. What is the difference in all these? पॉजिटिव डिग्री के वर्ड के साथ ER नॉर्मली, ओके, हर जगह में नहीं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर टाइम पॉजिटिव डिग्री के वर्ड के साथ एक ER जोड़ दोगे तो कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगा. पॉजिटिव डिग्री के वर्ड के साथ एक EST जोड़ोगे तो सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा. ओके, मीनिंग स्मार्ट, यू नो, होशियार या स्मार्ट. स्मार्टर मीन्स और भी स्मार्ट. स्मार्टेस्ट मीन्स सबसे ज़्यादा स्मार्ट. स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट. ओके, लेट अस सी say one sentence with these words. Smart, Ravi is a smart boy. Smarter, Ravi is smarter than Anil. Ravi Anil से ज़्यादा होशियार है. Smartest, Ravi is the smartest boy I have ever seen. रवि सबसे स्मार्ट लड़का है जिनको मैंने अभी तक देखा ही नहीं. मतलब अब तक मैंने देखे हुए लोगों में से, अब तक मैंने देखे हुए लड़कों में से रवि सबसे स्मार्ट है. रवि इज द स्मार्टेस्ट बॉय. रवि इज द स्मार्टेस्ट बॉय आई हैव एवर सीन. इन द सेम वे टॉल, TALL, यानी ऊंचा. टॉलर, ER डाला, कंपैरेटिव डिग्री बना. टॉलेस्ट, EST डाला, सुपरलेटिव डिग्री बना. टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट. स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट. आप ध्यान दे सकते हो हर एक कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पर ER से बने और सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड EST से बने. सो लेट्स गो अहेड. लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट. ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट. मीनिंग आता होगा आपको इन सभी वर्ड्स का. ग्रेट यानी बड़ा या महान. ग्रेटेस्ट, ग्रेटर मीन्स और भी. ग्रेटेस्ट मीन्स सबसे ज़्यादा. यंग, यंगर, यंगेस्ट. यंग यानी जवान या छोटा. यंगर यानी और भी छोटा. यंगेस्ट, ये वर्ड को हम एक सेंटेंस में डालते हैं एक बार. यंग. अंजलि इज अ यंग गर्ल. ओके, अंजलि एक जवान लड़की है, यंग लड़की है. अंजलि इज यंगर दैन सौम्या. अंजलि सौम्या से छोटी है. अंजलि इज यंगर दैन सौम्या. यंगेस्ट.
Anjali is the youngest among all the children sitting here. अंजलि इज द यंगेस्ट among all the children sitting here. यहाँ पर अंजलि का कंपैरिजन जितने भी बच्चे यहाँ बैठे उनके साथ हुआ. तो कहने का मतलब है अंजलि यहाँ बैठे हुए सभी बच्चों से सबसे छोटी है. सो यंग, यंगर, यंगेस्ट. वीक, वीकर, वीकेस्ट. वीक यानी कमज़ोर, वीकर यानी और भी कमज़ोर, वीकेस्ट यानी सबसे ज़्यादा कमज़ोर. स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट. स्ट्रॉन्ग ताकतवर, स्ट्रॉन्गर और भी ज़्यादा, स्ट्रॉन्गेस्ट यानी सबसे ज़्यादा ताकतवर. सुना होगा ना, भीम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एमंग द पांडवास. पांडवा लोगों में से भीम सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था. सो देयर इन दैट सेंटेंस भीम वॉज कंपेयर्ड विथ ऑल द अदर पांडवास. बाकी सभी पांडवास के साथ भीम का कंपैरिजन हुआ. दैट्स वाई इट इज़ द सुपरलेटिव डिग्री. भीम वॉज स्ट्रॉन्ग, इतना बोलेंगे तो इट इज़ अ सिंपल कंपैरिजन. भीम ताकतवर है. भीम वॉज स्ट्रॉन्गर देन युधिष्ठिर. युधिष्ठिर से भी ताकतवर है या ताकतवर था भीम. सो कंपैरिजन वॉज डन बिटवीन युधिष्ठिर एंड भीम, ओनली टू पीपल. बट भीम वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग द पांडवास मीन्स कंपैरिजन ऑफ भीम वॉज डन with all the other, means 4 more Pandavas. So many people. Now the next word is old, older, oldest. ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट. ये वर्ड हम नॉर्मली यूज़ करते हैं जब कोई सामान की बात बोल रहा हो, कोई एनिमल के बारे में बोल रहा हो, कोई प्लेस के बारे में बोल रहा हो, तो हम ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट लिखेंगे. दिस डॉग इज़ वेरी ओल्ड. दिस डॉग इज़ ओल्डर दैन दैट वन. दिस इज़ द ओल्डेस्ट डॉग ऑफ दिस एरिया. ये सभी जगह में हमने ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट लिखा. बट इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, पर इंसान की बात है तो आई हैव रिटन हियर, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ लिखने में, ह्यूमन बीइंग. इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग वी यूज़ ओल्ड, दिस इज़ एन ओल्ड मैन. बट उसके बाद हम एल्डर, एल्डेस्ट, मेनली उम्र के बारे में, इंसान की उम्र के बारे में बोलते हैं तो वी नेवर यूज़ ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट. इंस्टेड वी यूज़ ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट. आई एम द एल्डेस्ट ऑफ माई फैमिली. मैं मेरे फैमिली में सभी लोगों से उम्र में बड़ा हूँ. एल्डेस्ट. We don't say I'm the oldest of the family. Okay, we are not a thing. In the same way, I'm elder than my sister. I'm elder than my sister. मतलब मेरी बहन से मैं बड़ी हूँ. We don't say that I'm older than my sister. Okay, हम इस तरह नहीं बोलते. Older than नहीं बोलते इंसान के लिए. इंसान के लिए elder than, otherwise the eldest. इस तरह बोलते हैं. Now other one, more. Clever. Clever means होशियार, या जिनको बहुत इंटेलिजेंस हो, क्लेवर, होशियार. क्लेवरर, क्लेवरेस्ट. ही ऑल्सो वी यूज EREST. बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट. बोल्ड यानी हिम्मत. ओके, बोल्डर, बोल्डेस्ट. वाइस, वाइसर, वाइसेस्ट. ऑलरेडी द एंडिंग ऑफ द वर्ड वॉज E. द लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड इन वाइस इज E. सो इसीलिए वाइसर में हमें ER नहीं डालना पड़ा, ओनली वी हैड टू ऐड R. वाइसेस्ट में EST नहीं डालना पड़ा, ओनली वी हैव टू ऐड ST. सो ऑलरेडी E है तो ER नहीं, ओनली R. EST नहीं, ओनली ST. हाई, हायर, हाईएस्ट, दैट इज द सेम. लेट, लेटर, लेटेस्ट. E है तो R डाला, ST डाला. लेट, लेटर, लेटेस्ट. चीप, चीपर, चीपेस्ट. चीप, चीपर, चीपेस्ट. चीप यानी सस्ता, चीपर यानी और भी सस्ता, चीपेस्ट यानी सबसे ज़्यादा सस्ता. कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट. कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट. ये इतना मैं यहाँ पर दे रही हूँ, बाकी जो है कुछ स्पेशल कंडीशंस है. सो वी विल गो अहेड विथ मोर एंड मोर वर्ड्स so that you will be able to make the word means different degrees of comparisons easily. Okay, so we'll come back with the next video as soon as possible without waiting for the next period of grammar. And in that we have to complete the slowly we'll complete this degree of comparison topic. Okay, bye.